Hello learners, in this video we are going to talk about prose and forms of prose which are autobiography, biography and memoirs. So the first we will talk about prose. In literature, prose is a form of writing or spoken language that follows the natural flow of speech than a rhythmic or metrical structure. It is most common form of writing and is used in novel, short story, essay, play. सो प्रोज इज़ अ राइटिंग स्टाइल और स्पोकन लैंग्वेज स्टाइल जिसमें आप यू विल यूज़ द फ्लो ऑफ स्पीच. ठीक है, आप अपने फ्लो ऑफ स्पीच को यूज़ करके लिख रहे हो और आपको कोई रिदम मीटर ऐसे स्ट्रक्चर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने फ्लो में लिख सकते हो एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसको आप नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, एसे, प्ले ये सब लिखने में यूज़ करते हो. ओके, सो प्रोज इज़ बेसिकली स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पोकन लैंग्वेज. ओके, type of prose are fictional prose, non-fictional prose, heroic prose and prose poetry. So fictional prose is the type of prose in which you use imaginary things, characters, setting, background, everything is imagery. And sometimes author जो है वो reality और imagery को blend भी करते हैं fictional prose में. नॉन फिक्शनल प्रोज इज़ ऑल अबाउट रियलिटी. उसमें कुछ इमेजरी नहीं होता है. ठीक है, दे यूज़ देयर फिलोसफी, देयर आइडियोलॉजी, देयर थॉट्स इन नॉन फिक्शनल प्रोज. देन वी हैव हीरोइक प्रोज. हीरोइक प्रोज इज़ ऑल अबाउट द हीरो. जो मेन कैरेक्टर होगा उसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं वो लिखते हैं हीरोइक प्रोज में. Then prose poetry. Prose poetry is basically the mixture of prose and poetry. Prose poetry में you will see prose, in the flow of prose you will see a part of poetry. या फिर जो डायलॉग्स होंगे वो पोइट्री के फॉर्म्स में होंगे पर बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रोज में होंगी. सो दैट इज़ प्रोज पोइट्री. मतलब बेसिकली मिक्सचर होगा प्रोज और पोइट्री का. प्रोज स्टाइल. कैसे स्टाइल्स यूज़ करते हैं ऑथर्स टू राइट प्रोज. So basically, prose style refers to an author's distinctive way of expressing thoughts in writing. It is shaped by tone, diction means word choices, sentence structure, rhythm and figurative language. So जो prose style है वो author to author vary करता है. मतलब different authors के different prose style होते हैं and sometimes it vary according to their genres. Novels में they use narrative style, sometimes they use descriptive style, expository style, many kind of style they use in their different genre and it can be used by different author in their work. Then ये shape होता है through their tone कि वो कैसा tone यूज़ करते हैं, कैसा diction, word choices कैसे हैं उनके. कितने authors होते हैं जो बहुत difficult word यूज़ करते हैं, बहुत क्लासिक वर्ड यूज़ करते हैं और कुछ जो होते हैं वो जो करंट में वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं सोसाइटी में वैसे वर्ड्स को वो उठा के अपनी राइटिंग स्टाइल में यूज़ करते हैं. देन सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा यूज़ कर रहे हैं वो. कुछ ऑथर जो है वो बड़े बड़े वर्ड्स सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, बहुत लंबे पैराज में लिखते हैं वो, और कुछ बहुत छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. दे यूज़ रिदम एज वेल. फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स सिमली, मेटाफर, ये सब भी यूज़ करना होता है. सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ऑथर के प्रोज स्टाइल को डिफ़र करती है. सम प्रोज स्टाइल आर नैरेटिव स्टाइल जिसमें दे ट्राई टू टेल यू स्टोरी विद कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट. देन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल जिसमें दे फोकस ऑन सीनरी डिटेल टू पेंट scenes or emotions. Expository style which explains ideas, concept or facts. ठीक है. Then we have persuasive style which aim to convince the reader. Persuasive style ऐसा होगा जिसमें रीडर को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है. Then reflective and personal style which is introspective, thoughtful, often found in memoirs and autobiographies, जिसमें ऑथर जो है वो अपने पर्सनल थॉट्स, अपने पर्सनल लाइफ इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है. Then poetic prose style, of course, poetic and prose. In this, author use imagery, metaphor, and rhythm. Okay. The first form of prose which we are going to talk about is autobiography. An autobiography is a literary work where a person writes about their own life, recounting events, experiences, and reflections. Autobiography एक ऐसा literary work है, एक ऐसा genre है जिसमें खुद
पर्सन ही अपने लाइफ के बारे में लिख रहा है, ठीक है, ऑथर अपनी ही लाइफ के बारे में लिख रहा है, जिसमें वो अपने लाइफ के इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस और अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. It is writer in the first person and aim to present a truthful account of author's life journey. इसमें ऑथर खुद अपने लाइफ के जो पर्सनल और जो रियल अकाउंट्स हैं और अपनी जर्नी के, वो प्रेजेंट करता है. की फीचर ऑफ ऑटोबायोग्राफी आर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, chronological structure, factual recounting, personal reflection, cultural and historical context, and purposeful writing. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बिकॉज ऑथर खुद लिख रहा है अपनी लाइफ के बारे में. क्रोनोलॉजिकल होगा, उनके बर्थ से डेथ तक की मतलब बर्थ टू प्रेजेंट लाइफ तक की सब कुछ सारी चीज़ें लिखी होंगी क्रोनोलॉजी में, ठीक है. देन फैक्चुअल रिकाउंटिंग, वो फैक्ट्स लिख रहे होंगे अपने लाइफ से रिलेटेड, जो उनके लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो लिख रहे हैं. पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑफकोर्स, क्योंकि जो भी चीज़ें दे आर प्रेजेंटिंग यू इज़ देयर पर्सनल लाइफ, इट बिलोंग टू देयर पर्सनल लाइफ. ओके. कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो उनके लाइफ से रिलेटेड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा दे आर ऑल्सो राइटिंग इट. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो भी लिख रहे हैं वो. पर्पसफुल राइटिंग है बिकॉज दे वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट देम, तो इसलिए पर्पसफुल राइटिंग होगी, ठीक है. टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी आर स्पिरिचुअल, रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी विच फोकस ऑन इनर ट्रांसफॉर्मेशन और रिलीजियस एक्सपीरियंस. ऐसी ऑटोबायोग्राफी जिसमें दे टेल यू अबाउट देयर रिलीजियस एक्सपीरियंस, देयर ट्रांसफॉर्मेशन. लाइक जो भी ऑटोबायोग्राफी जो सेंट्स या फिर किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ पे बेस्ड होती है, दैट इज़ स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी. लाइक एग्जाम्पल कन्फेशन बाय सेंट अगस्टिन. ओके. Then political autobiography, which focus on public life, struggle and ideological belief. Like if you take the example of the story of my experiments with truth by Mahatma Gandhi. Then we have intellectual autobiography, which explore the intellectual development and self-examination. जो intellectual development, जो आपका knowledge development है, उसको उस पर फोकस करता है. Like the confession of Jean-Jacques Rousseau. Okay. Then we have literary autobiography, which written by author focusing on their writing journey and creative process. लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी ऑथर के लाइफ पे फोकस करती है, जिसमें ऑथर जो है वो अपने राइटिंग जर्नी को दिखाता है, ठीक है. सो दैट इज़ लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी. एग्जाम्पल मेमोरी बाई वॉल्डेमेर नकोव. Some famous example of autobiography are the story of my experiment with truth by Mahatma Gandhi, autobiography of Benjamin Franklin by Benjamin Franklin, the story of my life by Helen Keller, long walk to freedom by Nelson Mandela. Next is biography. A biography is narrative account of person's life written by someone else. It presents the subject's life story from birth to death on the present, focusing on major events, achievement, character, struggle and their influence on society or history. So biography is also a narrative account, पर ये किसी person की life के बारे में कोई और लिख रहा है, ठीक है. It is about that person, that famous person, पर लिख कोई और रहा है. So इसलिए इसको हम biography बोल रहे हैं, not autobiography. Also it is very similar to autobiography क्योंकि ये birth to death और समटाइम प्रेजेंट पे फोकस कर रहा होता है. प्रेजेंट के जो मेजर इवेंट है, अचीवमेंट है, जो उनका स्ट्रगल रहा है, जो उनका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी या हिस्ट्री पे, उसके बारे में फोकस कर रहा है, पर क्रोनोलॉजी वे में कर रहा है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी में होता है. सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू ऑटोबायोग्राफी, बट इट इज़ रिटन बाय समवन एल्स, कोई और लिख रहा है, ठीक है. की फीचर ऑफ बायोग्राफी इज़ थर्ड पर्सन नैरेटिव, रिसर्च बेस्ड, क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव टोन, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. थर्ड पर्सन नैरेटिव क्योंकि कोई और लिख रहा है, रिसर्च बेस्ड होगा. समटाइम क्योंकि बायोग्राफी जो जिसके बारे में लिखी जा रही है वो हो सकता है उसकी डेथ हो चुकी हो, तो यू हैव टू डू रिसर्च अबाउट दैट पर्सन, तो आप रिसर्च बेस्ड बोल सकते हो उसको. देन क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ, ये सब कुछ आपको लिखना होगा. सो क्रोनोलॉजी में लिखना होता है, ओके. सीरियल में लिखना होता है, सीरीज़ में होता है सब कुछ, जो भी इवेंट उनके लाइफ का होगा वो सब कुछ सीरीज़ में होगा.
ऑब्जेक्टिव टोन होगा, एंड देन कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, क्योंकि उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी कल्चरल या हिस्टोरिकल इवेंट्स होंगे वो सब उसमें होते हैं. So what is the purpose of writing biography? To inform, to inspire, to analyze, to preserve history. You are writing the biography to inform people about that particular person, to inspire people about that particular person's life. एनालाइज करने के लिए कि आपने जो उस पर्सन के बारे में सुना है, जो जाना है, वो कितना सही कितना गलत है. टू प्रिजर्व हिस्ट्री, ऑफकोर्स इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट समवन हु इज़ डेड, तो आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व कर रहे हो, उनकी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे हो. टाइप्स ऑफ बायोग्राफी. ऑथराइज्ड बायोग्राफी रिटन विद द सब्जेक्ट्स और फैमिली परमिशन एंड कोऑपरेशन. बायोग्राफी जो कि सब्जेक्ट और उनकी फैमिली के परमिशन से लिखी जा रही है, दैट इज़ ऑथराइज्ड बायोग्राफी. ठीक है. देन वी हैव अनऑथराइज्ड बायोग्राफी, जो कि सब्जेक्ट के कंसेंट के बिना लिखी जा रही है, जिसमें यू हैव टू डू इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज थिंग्स, तब आप उस चीज़ को लिख रहे हो और बिना कंसेंट के लिख रहे हो, दैट इज़ अनऑथराइज्ड बायोग्राफी. क्रिटिकल एंड स्कॉलरली बायोग्राफी विच एम्फसाइज literary analysis, historical insight or psychological interpretation. You have to critically analyze the event or the achievement of that person's life और तब आप लिख रहे हो, so that is critical biography. Then popular biography, which is written for a specific person, for a specific audience, which can be accessible and engaging. Popular biography किसी पॉपुलर पर्सन के बारे में लिखी जा रही है, ठीक है, जिनको ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा है, तो वो ऑडियंस के लिए ही लिखी जाती हैं, ताकि ऑडियंस को जो चीज़ें उनके बारे में पता है उससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाए उनके बायोग्राफी के थ्रू. और ये ईजिली एक्सेसिबल होता है और इंगेजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं उनके एंड दे वांट टू नो अबाउट देम, तो ऑफकोर्स इट कैन बी एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग. सम फेमस एग्जाम्पल ऑफ बायोग्राफी आर The Life of Samuel Johnson by James Boswell, Alexander Hamilton by Ron Chernow, Steve Jobs by Walter Isaacson, Nora, The Real Life of Molly Bloom by Veranda Maddox. Okay. Next we have memoir. A memoir is a first-person narrative that focuses on specific memories, events, theme or periods in author's life rather than covering their entire life story. It is deeply personal, reflective and often literary in style. So what happened to memoir is, it is also written by the author. Author ही लिख रहा है अपनी लाइफ के बारे में, पर they try to focus on specific memory, कोई specific event, कोई special theme they are using, और they try to write about special period or specific period of their life. दे डोंट कवर देयर एंटायर लाइफ स्टोरी, ठीक है, वो अपने बर्थ टू डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, दे जस्ट ट्राई टू कवर देयर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ देयर लाइफ. वो पूरी लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी स्पेसिफिक मेमोरी के बारे में, किसी स्पेसिफिक पीरियड के बारे में दे ट्राई टू नरेट यू. एंड इट इज़ ऑफकोर्स डीपली पर्सनल, क्योंकि वो अपने पर्सनल मेमोरी, अपने पर्सनल इवेंट के बारे में आपको बता रहे हैं. की फीचर ऑफ मेमोयर आर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑथर खुद लिख रहा है. Focus on slice of life. It focus on specific memory, specific event, reflective and emotional, क्योंकि वो उस पर्सन के स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक मेमोरी के बारे में बता रहा है, तो ऑफकोर्स इट विल बी रिफ्लेक्टिव, इमोशनल भी होगा. एंड इट ब्लेंड फैक्ट विथ इंटरप्रिटेशन. जो फैक्ट सोसाइटी हैव अज्यूम अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस फैक्ट को दे ट्राई टू इंटरप्रिटेट बाई देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. So these are the key feature of memoir. Then what are the purpose of writing memoir? Of course, to share their experience to the world, to offer insight, to get people know about their identity, their personal experience, to explore identity, to explore their trauma, their suffering, ठीक है, to connect with those people जिन्होंने same चीज़ें experience की हैं, ठीक है, उनकी तरह ही सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. तो दीज आर द पर्पस ऑफ राइटिंग मेमोयर. देन देयर आर टाइप्स ऑफ मेमोयर. द फर्स्ट इज पर्सनल मेमोयर, देन पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल मेमोयर, सेलिब्रिटी मेमोयर, सर्वाइवल और ट्रॉमा मेमोयर, ट्रैवल और एडवेंचर मेमोयर. सो द पर्सनल मेमोयर इज अबाउट देयर ओन मेमोरी, their own personal event, their period of life,
तो उसमें वो पर्सनल चीज़ें बता रहे हैं। पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल होगा जो उनकी किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड होगा, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो मेमोरीज है, उसके बारे में दे आर राइटिंग। सेलिब्रिटी और प्रोफेशनल मेमोर, in that memoir they write about their professional journey, बस अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में दे आर राइटिंग। देन सर्वाइवल और trauma memoir, survivor memoir is something which deals with the trauma or suffering of the author. देन ट्रैवल एंड एडवेंचर मेमोर, जैसे कि कभी ऑथर किसी ट्रैवलिंग पे गया है, किसी एडवेंचर पे गया है, या फिर जो एडवेंचर उन्होंने लाइफ में फेस किए, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो देन दैट इज ट्रैवल और एडवेंचर मेमोर। Some famous example of memoirs are I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou, Educated by Tara Westover, Born a Crime by Trevor Noah, Night by Elie Wiesel. Okay, so this is all about prose and form of prose, autobiography, biography, and memoir. If you have any query about this topic or any particular topic, you can comment below, and have a nice day.